Greetings of the day learners. Welcome you all in English class. Today we are taking English grammar and composition part in our lecture, and in that we will learn article writing. So learners, before telling you the format, what is article writing, I want to tell you one very most important thing, and that is golden rule of all writings. सारा समझाने से पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको समझाऊंगी कि हम जितनी भी राइटिंग्स लिखते हैं इंग्लिश में या हिंदी में भी या किसी भी लैंग्वेज में हम कुछ भी लेख लिखते हैं उसका एक गोल्डन रूल होता है. एंड व्हाट इज द गोल्डन रूल जस्ट लिसन. सी फर्स्ट लेटर इज सी स्टैंड्स फॉर कलेक्ट आइडियाज. सी एक आप वर्ड को ध्यान रखना, सी एक लेटर को ध्यान रखना. सी और सी का मतलब क्या है? सी से क्या करेंगे आप? जो भी टॉपिक आपको दिया गया है आप उसके आइडियाज को कलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड आइडियाज को कलेक्ट करेंगे. ओ O means organize them. After collecting the ideas, you will organize them in a proper way. आपने ideas collect कर लिए, अब आप उन आइडियाज को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करेंगे, सीक्वेंस से ऑर्गेनाइज करेंगे कि जब आपको लिखना है तो आपको कौन सा थॉट कहाँ कैसे डालना है. डी ड्राफ्ट देम. माइंड में आपने उनको ऑर्गेनाइज कर लिया, अब आपको उनका एक रफ ड्राफ्ट बनाना है. ड्राफ्टिंग मतलब उसको लिखना स्टार्ट किया है, करना है एक रफ वे में. ई फॉर एडिट देम. जब आपने एक हल्का सा ड्राफ्ट बना लिया उसके बाद उसको उस पॉइंट्स को लेके आपको उनको इलैबोरेट करना है. आपने अपने जो भी आर्ट राइटिंग दी गई है उसको प्रॉपर इलैबोरेट करके लिखना है, एडिट करना है. आर रिवाइज देम. और एडिट करने के बाद आपको पूरा लिखने के बाद एक बार आपको उसको ठीक से सुनना है, प्रॉपरली पढ़ना है. आपको उसको रिवाइज करना है कि मैंने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या चीज आनी चाहिए या क्या चीज नहीं आनी चाहिए. अब मैंने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर दी, मैंने वोकैबुलरी मिस्टेक तो नहीं कर दी. ये सब आपको रिवीजन में चेक करना है. So now, welcome you all in the class. So today is date 29th May 2020 and day is Friday. As I have told you that today we are taking article writing. So what is article writing? Look, what is an article writing? You all read newspaper, you all read magazine. Whatever news are there, whatever magazine articles are there, they are article only. So they are articles. So what is article? An article is a piece of non-fiction prose writing. Means you have two types of writing, no? Prose and poetry. So articles always written in a prose format. So non-fiction, they are not false, they are true. Okay. And prose writing specially meant for newspaper and magazine. Specially they are meant for newspaper and magazine. You can also write articles for your school magazine. It usually describes or discuss something like author's personal opinion, finding research, any political issue, any social issue, any scientific issue, like any serious problem. If you really want to discuss, you can write an article on that to attract others' attention. Now, before giving you format, just have a look of the pictures of articles. These two are magazine articles. This way you have to decorate or you have to format your school magazine or magazine article. Now see, these are the like news magazines and newspaper article. You can see easily here. Just see where I'm going to point you. Just a wait. Okay, you can see this line. After this main headline, you can see this small dark letters which you are not maybe able to read or not able to read. But this is the person who has written the article. Means after the headline, you have to write the name of the author. Okay, so these are the news magazine and a
न्यूज़पेपर आर्टिकल। सो स्टूडेंट्स, हमने समझा कि गोल्डन रूल क्या है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल क्या है, हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल होता है, मैगजीन आर्टिकल होता है, किस तरह का उनका फॉर्मेशन होता है। अब हम जानेंगे और अब हम सीखेंगे व्हाट शुड एन इफेक्टिव आर्टिकल इंक्लूड। एक बहुत ही इफेक्टिव आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें उसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाती हैं, इफेक्टिव बनाती हैं, और वो क्या है। An effective article should include the following. ये जो चीजें अभी हम पढ़ेंगे ये सब चीजें उनमें इंक्लूड होनी चाहिए। नंबर वन, टाइटल। इट इज द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल एंड इट सेज व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट। टाइटल क्या होता है, किसी भी चीज को शीर्षक देना, यानी हम अपने आर्टिकल को भी एक शीर्षक देंगे। शीर्षक से क्या होता है, टाइटल से क्या होता है, हमें शीर्षक पढ़ के या टाइटल पढ़ के ही क्लियर हो जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे आर्टिकल का भी हेडलाइन होनी चाहिए जिससे हमें क्लियर हो जाए कि आर्टिकल किस सब्जेक्ट के लिए है। बॉडी। The body of the article may consist of several paragraphs and is usually structured in three parts: introduction, development of ideas and conclusion. बॉडी का मतलब है जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे अपने आर्टिकल की, हम लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो बेसिकली पैराग्राफ में होता है। अब पैराग्राफ में भी कुछ क्लासिफिकेशन होगा। पहला जो पैराग्राफ हम लिखेंगे वो हमारे टॉपिक के इंट्रोडक्शन के लिए लिखेंगे, जिससे कि हम उसकी भूमिका बांधेंगे। दूसरे जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, यानी जो आपका टॉपिक है आप उसके आइडियाज को डेवलप करेंगे। ठीक है, उसमें क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या डेटाज हैं, आप सब करेंगे। सेकंड वाले पैराग्राफ में आप इसको 2 पैराग्राफ में या 3 पैराग्राफ में भी चेंज कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। एट लास्ट कंक्लूजन, आपको आपके आर्टिकल का एक कंक्लूजन निकालना है, एक निष्कर्ष निकालना है कि अगर ये प्रॉब्लम चल रही है तो उसका ये सोल्यूशन है, अगर ये होता है तो हमें ये करना चाहिए, या फिर आपको ऑडियंस को और पब्लिक को अपील करना है। टारगेटेड ऑडियंस एंड रीडर्स। हम जब आर्टिकल लिखते हैं या कोई लेख लिखते हैं तो किसके लिए लिखते हैं, ऑब्वियसली रीडर्स के लिए लिखते हैं, वही पढ़ेंगे। ऑल आर्टिकल मस्ट बी रिटन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, और जो भी हम आर्टिकल लिखते हैं वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, किसको ध्यान में रख के लिखे जाते हैं। द राइटर शुड कीप इन माइंड द रीडर ऑडियंस फॉर whom द आर्टिकल इज बीइंग रिटन। तो राइटर को हमेशा अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए ही उसको आर्टिकल लिखने चाहिए। जस्ट लाइक आपको एग्जाम में आर्टिकल लिखने हैं, तो आप एग्जाम में आर्टिकल लिखेंगे टू अचीव मार्क्स, तो आप उसी क्राइटेरिया को याद में रखते हुए कि अच्छे स्कोर करने के लिए आपको क्या डेटास डालने हैं, कैसा फॉर्मेशन होना चाहिए, आपको एज अ टीचर और एग्जामिनर को याद में रख के लिखना है कि वो क्या चाहता है आपसे। पर्पस ऑफ राइटिंग, हमारे राइटिंग का पर्पस क्या है। नथिंग इज रिटन पर्पसलेसली, जो भी हम लिखते हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होता ही है। एन आर्टिकल मस्ट हैव अ क्लियर स्पेसिफिक पर्पस, और एक आर्टिकल का भी क्या होना चाहिए, एक क्लियर और स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। एन इफेक्टिव आर्टिकल मस्ट हैव क्लियरिटी ऑफ पर्पस। इफेक्टिव आर्टिकल वो ही होता है जिसके पर्पस में एकदम क्लियरिटी होती है, उसकी हर सेंटेंस में वो स्टेप बाय स्टेप अपने पॉइंट के ऊपर ही बढ़ रहा होता है, अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन नहीं होता। उसकी स्टाइल प्रॉपर होती है, उसकी वोकेबलरी प्रॉपर होती है, और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, वी हैव learned what is the golden rule of writing. Then we have understood what is article writing. We have also seen the examples, pictures, and we have understood what are the main point we have to keep in our mind before writing an article. Now the main things come, what is the format of article writing. Now I will explain what is the format of, or what is the layout of article writing. So it should always be written in a box. Then first of all you have to give a title or a proper heading, because it is catchy, it draws the attention of reader. There should be a title, and below it the name of the author or writer. I want to tell you one thing, that you can write the name of the author or writer just below the heading, in the left corner or in the right corner, and you can also write it
at last of the article in the left corner. After that, there comes the content, or you can say the body of article. Content includes, as I've told you, three main paragraphs. You can divide them into more paragraphs, but there should be three main points. First of all, introduction or opening paragraph. Second is development of the topic. In this, you have to develop the topic, ideas, data, and then last is winding up and summing up. And then last, conclusion. These are the main 4 points. It is not like that you have to write your article only in 4 paragraphs. You can write in 5 paragraphs also, but these points should be covered in all those paragraphs. Like one paragraph should be given to introduction, then you can given 2 paragraphs to development of the topic, and then third, fourth to winding up or summing up, and last conclusion line should be given. So students, this is the proper format of article writing. As I've told you that you can write the author's name or writer's name at the last here in the left corner. So students, we have now know what is the format of writing article. अब हम क्या करेंगे? We will understand the detailing of format. हम डिटेल अंडरस्टैंडिंग करेंगे आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट की. एंड व्हाट इट इज? नंबर 1, हेडिंग एंड टाइटल. अब हमें ये तो पता है हमें हेडिंग देनी है, पर हेडिंग देते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, किन पॉइंट्स को हमें केयरफुली फॉलो करना है. दे आर हियर. It may be one word, one phrase or a sentence, short sentence. तो जो हमारा टाइटल है वो एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज हो सकती है. फ्रेज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. और शॉर्ट सेंटेंस भी हो सकता है, छोटा सा कोई सेंटेंस. जस्ट लाइक पॉल्यूशन, अ सीरियस प्रॉब्लम. ऐसे करके आप अपने उसको आर्टिकल को एक टाइटल दे सकते हैं. फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन टाइटल शुड बी कैपिटल. आपको क्या करना है? जब आप टाइटल देंगे तो आपको अपने टाइटल के हर वर्ड को कैपिटल रखना है. जैसे कि आप यहाँ देखिए, आर्टिकल ए कैपिटल, राइटिंग डब्ल्यू कैपिटल, फॉर्मेट एफ कैपिटल, एल लेआउट कैपिटल. इसी तरह से आपको अपना क्या देना है? टाइटल देना है. विद एवरी वर्ड ऑफ द लेटर शुड बी कैपिटल. थर्ड इज इट मस्ट बी आई कैचिंग. और आपको एक ऐसा टाइटल देना है जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो और पढ़ते ही जैसे रीडर को एक क्यूरियोसिटी हो जानने की इसके अंदर क्या है इसके अंदर, और वो क्यूरियस हो जाए. इट शुड गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ थीम और पर्पस ऑफ द आर्टिकल. और जो आपका टाइटल हो वो आपके आर्टिकल के थीम को और पर्पस को एकदम क्लियर करता हो कि ये पर्पस है इसको लिखने का, हम क्या चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या लोगों में जगाना चाहते हैं, या उनसे हम क्या चाहते हैं. नेक्स्ट इज नेम ऑफ द राइटर और ऑथर. सेकंड पॉइंट है नेम ऑफ द राइटर और ऑथर. जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस पॉइंट को आपके पास एक चॉइस है. आप इसको चाहो तो टाइटल के बिल्कुल नीचे लिख सकते हो, राइट कॉर्नर में और लेफ्ट कॉर्नर में, या फिर आप इसको पूरा आर्टिकल खत्म करने के बाद लेफ्ट कॉर्नर में भी लिख सकते हो. एसेंशियल डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल फॉर फीडबैक लाइक ईमेल आईडी, प्लेस, और कोई भी किसी भी तरह का कांटेक्ट. आजकल क्या होता है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, कोई भी रिपोर्ट आती है, कोई आर्टिकल आता है, तो उसका प्लेस और डेट लिखा होता है. राइटर्स नेम, प्लेस और डेट, डिटेलिंग. और जब मैगजीन राइटर होते हैं तो उसकी राइटर की ईमेल आईडी भी होती है फॉर द फीडबैक. नेम ऑफ द राइटर. उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नेम ऑफ द राइटर. और अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट यू कैन राइट दिस पॉइंट just after your headline or at last of your article. Here again, just like as I have told you, जैसे मैंने आपको बताया, all these information can be given at the end of the article. ये सारी डिटेल्स मीन्स नंबर 2 वाली डिटेल्स आप आर्टिकल के लास्ट में भी दे सकते हो. अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इंट्रोडक्टरी ओपनिंग पैराग्राफ. हेडिंग डन, writer's name done. That's up to you whether you want to just write at the starting or last. But third आता है आपका introductory opening paragraph, जो आपका
अब जो बॉडी ऑफ द आर्टिकल है उसको लिखना है, तो इंट्रोडक्टरी ओपनिंग है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कैच अटेंशन बाय ओपनिंग विद अ क्वेश्चन, कोटेशन और एनी एग्जांपल। आप ऐसी स्टार्टिंग करेंगे अपने आर्टिकल की जिसमें कोई एकदम क्वेश्चन पूछा गया हो, जिससे रीडर पढ़ते ही उसको जानने में, उसको और समझने में ईगर हो जाए। कोई कोटेशन डाल सकते हैं आप, छोटा सा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस डाल सकते हैं या किसी और का एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, जिससे कि रीडर की अटेंशन ग्रैब हो। क्रिएट रीडर्स इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको ये फर्स्ट वाली लाइन क्यों फॉलो करनी है, जिससे कि वी कुड क्रिएट रीडर्स इंटरेस्ट। क्लियर एंड पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्रेशन, और हमें राइटिंग करते वक्त ये बहुत ही ध्यान रखना है कि हमारा जो भी एक्सप्रेशन है वो क्लियर हो और पॉइंट टू पॉइंट हो। इट मस्ट बी प्लान्ड, और जो कुछ भी आप लिख रहे हैं इट मस्ट बी प्लान्ड। ऐसा नहीं कि आपको एक टॉपिक लिखने के लिए दिया, आपने पॉल्यूशन पकड़ा और आपने लिख दिया और उसमें कोई भी रेलेवेंट डेटा नहीं है, उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है, बस पॉल्यूशन के टाइप बता दिए, तो आप बिल्कुल भी अपने मार्क्स अचीव करने में कैपेबल नहीं होगे। या फिर कोई और आपको प्रॉब्लम दे दिया है, जस्ट लाइक कोई बड़ी डिजास्टर के बारे में लिख दिया है, एटॉमिक पावर के बारे में आर्टिकल दिया है, तो आपको उसको उससे रेलेवेंट डेटाज आपको देने पड़ेंगे और हर चीज बड़ी प्लान्ड होगी। डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आपको अपना आर्टिकल कैसे डेवलप करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यू कैन कन्वर्ट दिस पॉइंट इन 2 to 3 पैराग्राफ ऑल्सो, जिसमें कि आपको इफेक्ट बता सकते हो, उसके उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हो, उसके क्या सॉल्यूशन होने चाहिए वो बता सकते हो। मेजर स्टेटमेंट्स एंड सपोर्टिंग आइडियाज विद एग्जाम्पल, आपको अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए मेजर स्टेटमेंट लाने पड़ेंगे, सपोर्टिंग आइडियाज देने पड़ेंगे और उसके साथ ही एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे। प्रॉपर डेटा विद एविडेंस, जो भी चीज आप लिख रहे हैं उसका एक प्रॉपर डेटा होगा, उसके एविडेंस होंगे। ये नहीं आपने मन से बना के कुछ भी लिख दिया और रीडर को बिल्कुल ऐसे। अब ये भी हम मान सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी एकदम सडन दिया जाता है लाइक एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप ऐसे डेटाज नहीं लिखोगे एक्यूरेट जो कि रॉन्ग हो। अगर आपको नहीं पता तो आप राउंड फिगर में या नियर अबाउट करके इस तरह से अपने डेटाज को डाल सकते हो। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एंड एग्रीमेंट, जब भी आप आर्टिकल लिखोगे तो अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए आप बहुत ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट लिखोगे, और जहां पे भी जो पॉइंट एग्रीएबल हैं वहां पर आप अपना एग्रीमेंट भी शो करोगे। नाउ नंबर 5, वाइंडिंग अप और समिंग अप पैराग्राफ, जो लास्ट से पहले वाला पैराग्राफ है। Sum up the main ideas by making comment, criticism or recommendation to justify your point of view. इस वाले पैराग्राफ में आपको कमेंट करना है, अपनी तरफ से क्रिटिसाइज करना है जो अभी सिचुएशन चल रही है, और कुछ रिकमेंडेशन देनी है जिससे कि वो सिचुएशन हम कंट्रोल कर पाए या उसको हम रिकवर कर पाए। एंड लास्ट 6, कंक्लूजन, सबके बाद आपको एक कंक्लूजन निकालना है। एक्सप्रेस अ होप, अ वार्निंग, एन अपील और अ कॉल फॉर एक्शन, जिसमें कि आपको कोई होप जगानी है, या फिर आपको कोई वार्निंग देनी है, या फिर कोई अपील करनी है, या फिर लोगों से ये बोलना है कि हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ स्टेप लिए जाने चाहिए जिससे कि हम ये सॉल्व कर पाए या इस चीज से डील कर पाए। अब लास्ट पॉइंट है, ये आपको नोट है, दैट डोंट बी टू डिस्क्रिप्टिव। हम लोग क्या सोचते हैं कि जितने से ज्यादा हम लिखेंगे, जितना लंबा आर्टिकल हम लिखेंगे, हम उतने ही अच्छे क्या करेंगे, हम उतने ही अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। बट स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अगर बहुत ही ज्यादा लंबा लिखोगे तो आपके टीचर्स उसको रीड भी नहीं करेंगे, दे विल लूज इंटरेस्ट इन दैम योर राइटिंग्स। सो आपको मोनोटोनस नहीं होना है, एक्यूरेट लिखना है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, माइंड वर्ड लिमिट, आपको गिवन वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, एग्जीगरेटेड वे में नहीं लिखना है, एंड योर डेटा शुड बी रेलेवेंट। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उसको बहुत इंप्रेसिव बनाने के चक्कर में उसको बहुत ही गलत बना दो। रेलेवेंट डेटाज होने चाहिए, फॉलो द प्रॉपर फॉर्मेट, और आपको अपने फॉर्मेट को प्रॉपरली फॉलो करना है। So this was the explanation that how you can create an effective article. I hope that it is helpful to you and you will follow all these rules next time whenever you will be writing article. Don't forget to subscribe our channel NCRT on your tips. Thanks for watching. Stay fit, stay healthy.